Hello everyone, welcome to my channel VD's Shiksha and I am your mentor Vandana Devrukar. Today we are going to continue with chapter number 1, Nature and Significance of Management, and today's topic is Importance of Management. This importance of management has 8 points and you have to learn these all head points, these 8 head points. For this I had prepared a short trick or a formula. You can use formula or you can exchange the words in your way, as you like. You can use it in your way, okay? So I had prepared my formula, that is NOAH UI square SN. It is NOAH UI square SN. N is for necessary in every field. Management is used in all the fields, whether it is a defense, agriculture, household thing or any field, it is used in all the fields. Second thing is O. O is for optimum utilization of resources. If the management is perfect, they can use this all resources in a better way. Which kind of resources you are having? Land, labor, capital. These all resources can be used, maximized if the management is perfect. Third thing is A. A means accomplishment of objectives. Now what do you mean by accomplishment? Accomplishment means to complete the objective. So what is the objective of business? Business objective is profit, and for accomplishment of this objectives, this management plays a great role. Then comes U. U means useful for the success of business. For any success of business or any kind of business, management, powerful management is very essential factor. If the management is perfect, your business will gain heights. Understood? Then comes I square. Twice I is used. So I had used I square. Instead of I square, you can use 2I also. Okay? Increase in job opportunities. If the management is perfect, efficiency of all the workers or the laborers will be used in a maximum way. Moreover, the business will gain a height and this will increase the heads, or we can say the departments of the business, and eventually this will help in creating a job opportunity. Then comes increase in profit. If the management is perfect, your business is going to gain a height and it will create a great profit. Then come social benefit. Now what is this social benefit? If the management is perfect, this management, because of this management, whatever business or whatever thing you are doing, that is directly or indirectly going to help the society. So directly it will benefit our society. It's called social benefit. Last but not least is a national motive. And national motive means if the management is perfect, the business is perfect, the corporate world is going on in a smooth way, this will help our national way also. Like example I am giving you, during this pandemic, you might be knowing that Mr. Tata had given donation of 1500 crores to the country. So this is called a national motive. What that person has done, because of his management and because of his work, he has gained a great wealth and a great position in the society. So he is using that wealth for national motive. Okay, understood this concept? So this is called NOAH UI square SN. Please take the screenshot of this screen. After the importance, our next topic is management is a science, art and a profession. Now you will have a question like this: how this management is linked with science? But this is not a pure science like physics. As in science we have different rules, principles, laws. The same way management also has rules and principles which they have to follow. If they will follow in a better way, the management will effective in a more way and they can achieve a great goals. Okay. Second thing is management is an art. Now how it can be an art? Art means it's not a pure art. Okay, it's not a pure art, but it is. You recall that definition, Owens and O'Donnell? It is an art of getting things done from others. दूसरों से काम निकलवाने की कला. तो same way management is an art. Management manages all the people. They have this kind of skills and based on that skill,
based on this art they can perform well this management activity. Third thing is management is a profession. Management is a profession. How it is a profession? Like doctor is there, teacher is there, LLB, CA, IIM, if you are going for MBA and this all things, these same profession like management is also a one kind of profession. As you can say, for example, managers, CEO, these all are included in management board. Understood? So we have here characteristics of profession. We have 5 characteristics of profession. First characteristic is requirement of specialized knowledge. If you are a professional and that too a management professional, you should have specific knowledge. For example, MBA or CA or some other profession, if you are following, the same degree or knowledge you should have. Second thing is increase in knowledge and research. Management help, this professional learning in management help in this business in way of research and development of business. Third thing is professional associations. Same way teachers association is there, doctors association is there, the same way management professionals also have their own association. For example, IIM or IIT. Okay. Fourth thing is implementation of code of conduct. Code of conduct means you have to follow the rules and regulations of management. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल वाला. फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्टर्स को देखा होगा एवरी टाइम स्टेथोस्कोप लगाया हुआ होता है. अगर आपने किसी एडवोकेट को देखा हो तो ब्लैक कलर का उन्होंने एप्रन पहना होता है, उसके बिना वो लोग कोर्ट में नहीं आते. तो सेम है यहाँ पे कॉस्ट्यूम का कोड ऑफ कंडक्ट है, बट यहाँ पे मैनेजमेंट के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल. देन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू आर एन मैनेजमेंट प्रोफेशनल, आपकी खुद की एक मोरल पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ कि आप कुछ ऐसा गलत ना करो कि आपके प्रोफेशन की वजह से किसी के बिजनेस को इश्यूज हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ सीए, आप अपने क्लाइंट को कभी चीट नहीं कर सकते. तो ये सारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी. लास्ट थिंग इज कि साइंस एंड आर्ट जो है वो एक बहुत ही स्वीट कॉम्बिनेशन की तरह यहाँ पे यूज किया गया है. साइंस जो है वो प्योर फिजिक्स भी नहीं है, और आर्ट जो है वो जो हमारा जो नॉर्मल आर्ट होता है जिसमें आप लोग लैंडस्केप आर्ट वगैरह आर्टिस्टिक चीजें बनाते हो, उतना परफेक्ट भी वो नहीं है. बट देन टू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा मैनेजमेंट बनता है. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज दिस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट and why there is a need of levels of management? If you are a sole proprietor, means आप कोई भी एक छोटी सी शॉप चला रहे हो और आप sole proprietor हो, तो everything you are going to manage by yourself only. But if you are having a great or a big business, then you have to manage each and every person, each and everything by your own. So to easy this kind of management, there are 3 types of, or we can say 3 levels of managements are there. That is, first is top level management. If we are going through a great business like Tata, Reliance, such kind of Microsoft, Apple, such kind of great business or big businesses we are having, then at that place such kind of levels of management should be there to delegate responsibility and authority. Now what is delegate responsibility and authority? Means आप उनको अपने powers दे रहे हो. Powers का मतलब ये नहीं होता है कि आपने signature करने का power दे दिया. Powers का मतलब होता है आप अपनी कुछ duties, कुछ पार्ट जो है उसको आप सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हो. सेंट्रलाइज्ड पावर को हम क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड पावर में ट्रांसफर कर रहे हैं. सो उसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए, डिफरेंट लेवल्स दिए. सो वेरी फर्स्ट लेवल इज टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप, फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक घर से रिलेटेड एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ. इस ट्राइंगल को आप देखेंगे तो वेरी टॉप पे आपके फादर होते हैं, या वी कैन से आपके दादाजी, कर्ता. सेकंड जो मिडिल लेवल है उस पे आपकी मदर होती है, और जो लास्ट लेवल है वहां पे आप होते हैं.
आपको अगर कुछ भी काम है तो आप क्या करोगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कंसर्न करोगे, डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करोगे नहीं। अंडरस्टूड? सो ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, आपकी जो मदर है वो मीडिएटर का रोल प्ले करती है हमेशा बच्चों और घर के जो बड़े होते हैं उनके बीच में। ये मैंने आपको एक रेगुलर एग्जांपल दिया है, उसका इस बिजनेस से या इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, बट इससे आपका कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा। यहीं पे वही चीज हम पढ़ने वाले हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। सी दिस बॉटम लेवल मैनेजमेंट can't directly correlate with the top level management. They will correlate or we can say उनकी accountability किसके साथ है, middle level के साथ, और middle level किसके लिए accountable है, for the top level. Okay, so very first is top level management. This top level management is also known as higher level of management, or we can say the other name of top level management is higher level management. Who are included in this? So BOD means Board of Directors, MD Managing Directors, CEO Chief Executive Officers and General Managers. Second thing is middle level of management. This is also known as officers level management. यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके जो भी ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, वो अपने ऑब्जेक्टिव पास ऑन करते हैं किसके पास, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट इसको वर्कआउट करेगा। तो वहां पे होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। देयर वी आर हैविंग डिपार्टमेंटल हेड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स आर देयर, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, पर्सोनल, फाइनेंस। नाउ व्हाट इज दिस पर्सोनल? पर्सोनल मींस स्टाफिंग, जो भी एम्प्लॉइज वगैरह जो भी सब काम कर रहे हैं उनके खुद के भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। थर्ड इज बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज फंक्शनल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सी जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड फंक्शनल एंड ऑपरेशनल। जो सपना इन्होंने देखा है वो एक्चुअली में पूरा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। फंक्शन सबसे ज्यादा यहाँ पे, काम सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, और ऑपरेशनल वर्क यहाँ पे होता है। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इन अ वन डे 1 करोड़ बॉटल शुड बी प्रिपेयर्ड। उन्होंने ये टारगेट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दिया। अपने डिपार्टमेंटल हेड्स में प्रोडक्शन को देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्शन करना है, सेल्स कैसे करना है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी परचेज्ड, रॉ मटेरियल शुड बी परचेज्ड, पर्सनल कितने लोग लगेंगे, and finance, blood of management, or we can say the blood of business is known as finance. ये सब अरेंज कैसे करना है। लास्ट में जो बॉटल्स बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, तो बॉटल्स बन रही है बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। वहां पे एक्चुअल वर्क हो रहा है, वर्कर्स एक्चुअल वहां पे काम कर रहे हैं। तो वहां कौन है, सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, foremen and workers are included in the bottom level of management. So this is a very important topic of this chapter, that is known as levels of management. Please take the screenshot of this. Let us start with a new topic that is called top level management function. What kind of function this top level management is doing? So who are included in this top level management? As we already learned, board of directors, MD, CEO and general manager. And this top level management is also known as higher level of management. Which kind of functions this top level management is performing? So this all functions are being given in your textbook, but that all functions are in sentence form. मैंने क्या किया है, उसमें से मेन कीवर्ड्स को निकाला है। You have to go through these keywords perfectly so that it would be easy to learn such a great 9 points. Understood? So ये जो आप keywords मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, इस keywords की मदद से आप लोग बहुत फास्टली इस आंसर को मेमोराइज कर पाओगे। So very first is primary and subsidiary. दिस टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीईओ है, एमडी है, वो क्या करते हैं, जो भी बिजनेस है उसका प्राइमरी और सब्सिडरी जो काम है या जो फंक्शन है वो सब किसके पास होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकेंड थिंग इज डायरेक्टर्स एज ट्रस्टी। तो हम लोगों ने देखा था बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स। सो दीज डायरेक्टर्स आर
also act as trustee of the business. Then third is select CEO, high officers, authority and responsibility. ये मैंने कीवर्ड है, इसको मैंने वर्ड्स को यहाँ पे सिर्फ रखा है, बीच के कंजक्शंस मैंने निकाल दिए हैं. सी क्या करते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, वो सीईओ को या हायर ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट करने का काम करते हैं एंड दे गिव देम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मींस अपने पावर्स जो हैं वो उनको देते हैं जिससे बिजनेस को अच्छे से स्मूथली मेंटेन किया जा सके. फोर्थ इज सैंक्शन बजट. जो भी बिजनेस चला रहे हैं उसमें पैसा, फाइनेंस, ब्लड इज कॉल्ड ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग बोला जाता है फाइनेंस को, उसके लिए बजट बहुत ही जरूरी होता है. तो जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो इनको बताता है कि हमको कितना पैसा कब कहां क्यों चाहिए. तो ये हमेशा बजट को क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं. फिफ्थ थिंग इज अबाइड बाय लॉ. अबाइड मींस कि बंधे हुए हैं, लॉ से बंधे हुए. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे हैव टू फॉलो द लॉ. अगर वो लॉ फॉलो करेंगे तो सेम वे मिडिल एंड बॉटम लेवल जो है वो भी लॉस को फॉलो करेंगे. सिक्स्थ थिंग इज टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. जो भी बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं, मेन डिसीजंस लेने हैं, वो हमेशा कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. देन कम्स 7 एनालाइज. वो क्या करते हैं, जितने भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो वर्क कर रहे हैं या बॉटम लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं. वो एवरी नाउ एंड देन उनकी रिपोर्ट्स को लेते रहते हैं, देखते रहते हैं और उसके हिसाब से अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं. देन 8th इज प्लान फॉर एंटरप्राइज. जो भी न्यू प्लानिंग करना है, सपोज फॉर एग्जांपल डीमार्ट इज एन चेन, बिग बाजार वो भी एक चेन है डिपार्टमेंटल स्टोर्स की. तो अगर नए एंटरप्राइजेस ओपन करने हैं तो उसके लिए जो प्लान बनाना है, जो फर्स्ट थिंग है वो कहां पे होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे. लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज 9th पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड एक्सेट्रा. टॉप लेवल मैनेजमेंट, फाइनेंस का पूरा मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. तो अगर उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं, कैपिटल रेज किया है, तो सेम वे दे हैव टू गिव बैक profit and this all dividend and reserve fund to different type of peoples. Understood? So these 9 points or 9 functions are being performed by top level management. Please take the screenshot. Functions of middle level of management, which is also known as officers level. Okay, so what they are doing, they are following the instruction given by CEO. Whichever instruction is given by the top level management that are being implemented in the middle level of management. Second point is prepare budget and present it to the top level. डिपार्टमेंटल हेड्स क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, जो भी बजट है उसका वो पूरा रिपोर्टिंग प्रिपेयर करेंगे एंड दे विल हैंड इट ओवर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट कि इस डिपार्टमेंट को इतने बजट की जरूरत है. थर्ड थिंग इज formulate rules, decide method and take measures. जो भी बिजनेस के या अगर आप इतने सारे लोगों को साथ में मिलके काम कर रहे हो, लार्ज स्केल वर्क आपका अगर चल रहा है, तो दे शुड फॉलो सम रूल्स एंड पॉलिसीज. तो वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, उसके हिसाब से मेथड्स को प्रिपेयर करना, और अगर कोई मेथड या कोई चीज में गलती है तो उसको डायरेक्ट करके और उसके रिलेटेड मेजर्स लेना. परफेक्ट. Then fourth thing is increase efficiency. अब क्या होता है कि जो भी वर्क हो रहा है यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जहाँ वर्क हो रहा है वहाँ के जो भी वर्कर्स है या जिसको हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, एम्प्लॉयज, उनकी एफिशिएंसी को रेज कर सकते हैं परफेक्ट वर्क उनको देके. Then come enthuse the employees. जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो अपने सब डिपार्टमेंट में, अंदर जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग उनके अंडर में आते हैं उनको कंटिन्यूसली बूस्ट करते हैं, एंथूज करते हैं. आपको पता होगा अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आपके टीचर जो है आपको शाबाशी देंगे, वाओ वेरी गुड. तो सेम वे यहाँ भी इनको कंटिन्यूसली शाबाशी देनी पड़ती है जिससे इनका वर्क चलता रहे. मींस दिस इज कॉल्ड एंथुसियाज्म. Okay, then come touch with officers, establish coordination. Now which kind of officers? डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, डिफरेंट हेड्स हैं, वो सबका एक दूसरे
दूसरे के साथ कोरिलेशन होता है। मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया, जो टॉपिक हमने लिया उसमें बताया कि 1 करोड़ बॉटल बतानी है तो बॉटल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, अलग अलग हेड जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, बट सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 करोड़ बॉटल बनाना। तो सबका एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए। देन कम्स फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन। जितने भी डिविजन्स हैं डिपार्टमेंटल हेड्स में, सब डिविजन्स होते हैं, उसके नीचे दूसरे डिविजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अपनी स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपने देखा होगा अकाउंट डिपार्टमेंट डिफरेंट टोटली, फिर देन ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो आपका डिफरेंट है, कैंटीन डिफरेंट चल रही है, स्कूल में टीचर्स हैं तो स्कूल में भी हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, मिडिल एंड प्राइमरी, सारे डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो सेम वे फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन, तो सबकी फंक्शनिंग को देखा जाता है और उसकी रिपोर्ट कहाँ दी जाती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। देन कम्स सुपरवाइज द वर्किंग, पास इट टू द टॉप। सेम वे वो क्या करते हैं? सारा जितनी भी वर्किंग हो रही है, जो जो डिपार्टमेंट में जो जो काम हो रहा है, उन सबकी वर्किंग का रिपोर्ट तैयार करना, उनको देखना, उनको डायरेक्ट करना, उनके डायरेक्ट करने के बाद उसको पास करना है किसके पास? टॉप के पास। देन कम्स लास्ट टॉप लेवल पॉलिसी डिसीजन। अब यहाँ पे क्या है? जो भी टॉप लेवल डिसीजंस ले रहा है, पॉलिसी डिसीजंस ले रहा है, मींस उसको कुछ भी अगर डिसीजंस लेने हैं कि मैं बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं, कौन से एंटरप्राइज को हमको आगे बढ़ाना है, कहाँ नया, अगर हम लोग को कुछ नया सेटअप करना है, तो वो पॉलिसी डिसीजंस इनकी ही मदद से वो ले पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट से ही पता चलेगा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, व्हाट काइंड ऑफ एफिशिएंसी आवर ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स आर हैविंग, whether it is a production, whether it is a sales or we can say finance। तो पॉलिसी डिसीजंस के लिए टॉप लेवल को हमेशा कौन इफेक्ट करता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्ट करता है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Functions of bottom level of management, that is known as functional and operational level also. The second name of bottom level management is functional and operational level. So who are included in this bottom level? Supervisors, jobbers, foremen and workers. तो यहाँ पे मोस्टली जो फंक्शनिंग है वो कौन कर रहा है? सुपरवाइजर्स कर रहे हैं। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए, ध्यान देने के लिए जो पर्सन है वो ये सारे फंक्शंस को फॉलो करेगा और जो वर्कर्स है, जॉबर्स है, फॉरमेन्स है, उनसे वर्क लेगा। सो वेरी फर्स्ट इज सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। Those employees which are working in the bottom level, उनको वो क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। सेकेंड थिंग इज मेंटेन डिसिप्लिन, मोरल इज बूस्टेड। अब क्या होता है कि जो भी वर्क चल रहा है वहां पे हर जगह पे, स्कूल में ही डिसिप्लिन नहीं होता है, एवरी प्लेस हैज इट्स ओन डिसिप्लिन लेवल। तो वहां पे सारी चीजें सही पे हो रही हो, हर कोई टाइम पे आए, हर कोई टाइम पे वर्क करे, दिस इज कॉल्ड टू मेंटेन द डिसिप्लिन। अगर उनको सुपरवाइज करने के लिए नहीं होगा तो क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो मोरल इज ऑल्सो बूस्टेड, और उनका मोरल वर्क करने के लिए उनको बूस्ट किया जाता है, उनको कंटिन्यूसली पुश किया जाता है। थर्ड थिंग इज प्लान रूटीन वर्क। अब ये सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो पूरे डे का या एवरी डे का जो है रूटीन वर्क को प्लान कर देते हैं कि आज क्या करना है, कितना वर्क कंप्लीट होना चाहिए। जो टारगेट इनको किन्होंने दिया है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया है। और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को किसने दिया है वो टारगेट? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दिया है। अंडरस्टूड? देन कम्स फोर्थ, फंक्शंस, ट्रांसफर, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। देन सुपरवाइजर्स क्या करते हैं? जो भी बंदा, जो भी एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है, उनका फंक्शनिंग क्या चल रहा है, किसी को किसी और फील्ड में या उसी काम में कहीं और डिपार्टमेंट में सेट करना है, उसका प्रमोशन करना है, नए वर्कर्स आए उनको ट्रेनिंग देनी है, ऐसे सारे वर्क्स को कौन देखता है? सुपरवाइजर। देन कम्स फिफ्थ, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, प्रोग्राम, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। इंस्ट्रक्शन देने का काम, उनको ऑर्डर देने का काम, प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन किसको देनी है? डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को, मींस मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। देन कम्स सिक्स्थ नंबर, दैट इज फंक्शंस, लेआउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी।
बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पे मेन मशीनरी वर्क होता है, मेन प्रोडक्शन का काम होता है, तो वहां पे मेन लेआउट किस तरह से काम करना है, मशीन्स का रिपेयरिंग हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, ये सारा वर्क देखा जाता है। देन कम्स 7 अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। मशीन्स एसेट्स में आते हैं, क्या वो एक ही एसेट कंटिन्यूसली चलता रहेगा? नो, मेनी अ टाइम्स उसमें चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, न्यू मशीन्स भी लेनी पड़ेगी। तो इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना, वर्कर्स का काम नहीं रुकना चाहिए। वर्कर्स जाएंगे टॉप लेवल के पास या मिडिल लेवल के पास कि हमको इतना रॉ मटेरियल चाहिए, नो, दे विल डिस्कस विद सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर इज गोइंग टू अरेंज दिस ऑल थिंग्स फॉर द वर्क गोइंग ऑन इन द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देन कम्स solve the genuine problems of workers। वर्कर्स की खुद की भी बहुत सारे एवरीडे के इश्यूज होते हैं। आज किसी के घर कोई प्रॉब्लम हो गया, आज कोई बीमार पड़ गया, आज किसी का कुछ इशू है, आज किसी का मूड नहीं है काम करने का, अंदर अंदर क्लैशेस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये सारे वर्कर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो मिडिल और टॉप के पास नहीं पहुंचने चाहिए। आपके घर में भाई बहन के जो झगड़े चल रहे हैं वो बात पापा के पास नहीं पहुंचनी चाहिए, आपकी मम्मी ही उसको सब कुछ सॉल्व कर देती है। समझ में आया? देन कम्स 9th नंबर, इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, उसको फॉलो करवाने का काम यहाँ पे किया जाता है। वर्कर्स को भी वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो ये जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाएंगे। Then comes 10th number, reports bottom, suggestions, complaint is to middle level of management। जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें बॉटम लेवल पे हो रही है उन सबको प्लस बॉटम लेवल में जो एम्प्लॉइज है उनके भी सजेशन हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे नहीं है तो उनके कोई सजेशंस नहीं है। उनको काम करने के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो वो फेस कर रहे हैं, वो सजेशंस, उनकी कंप्लेंट्स कहां तक पहुंचानी है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक पहुंचानी है। सो इन दिस वे बॉटम लेवल मैनेजमेंट जो है फंक्शनल और ऑपरेशनल जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट या लेवल, उसके खुद के 10 फंक्शंस हैं। अंडरस्टूड? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।